Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that we have started chapter 1 of your English course book, Wordsworth English course book. Children, this chapter is related to a girl and her mother. And in this chapter, we have completed 4 or 5 paragraphs. I think we have completed 5 paragraphs no, in fact 6 paragraphs we have completed since the previous videos. And today I'm going to start 7th paragraph. But before starting the 7th paragraph, let us revise what we have studied till date related to this chapter. Children, this chapter, the name of the chapter is My Mother and I. As you can see, it is written on the board. So in this chapter, there is a girl who is telling us about her mother and herself. She is telling us her name, her age, where she lives, and with whom she lives. All these things she is telling us, and she herself is telling us all these things. So the whole chapter is in the way as if the girl is speaking to us, the girl is talking to us. So in this chapter she tells us the girl's name is Pihu, and she tells us that she is 7 years old. She lives in a city named Mumbai. Mumbai is in Maharashtra, and she lives with her mother and a younger sister. Younger sister means the sister whose age is less than Pihu's age. Okay, then she also shows us a picture where her mother is there, her sister is also there, and her sister is holding a doll, and that doll is her sister's favorite doll. Then further she tells us the name of her mother. Her mother's name is Pallavi. Her mother is 36 years old, and she has short black hair and brown eyes. Her mother has brown eyes, and Pihu also has brown eyes. This is what Pihu tells us. Then she tells us that her mother is a very hard working lady. She works very hard. She wakes up early in the morning because she has to cook for the family, and she also has to get ready for work. This means that her mother works somewhere. And she then again shows us a picture where her mother is making juice for them. Then she tells us that her mother is a teacher, and she teaches adult person. She teaches grown-ups. She does not teaches children. She teaches the people who want to become teacher. And then again she shows us a picture where her mother is taking class. She is teaching the grown-ups. Then she tells us that after her work, her mother comes home. She comes back at 4 in the afternoon, and while coming back, she picks her younger daughter from play school. Her younger daughter goes to play school because she is too small, and while coming back to home, her mother picks her younger sister also. Then she cooks dinner, and Pihu tells us that sometimes she also helps her mother in cooking. And then she shows us a picture where she is shelling peas. Shelling peas matlab matar ko chilna. In this way, she helps her mother in making dinner also. She is too small. She cannot cook herself. Pihu cannot cook herself, but she can assist. She can help her mother, and she does that. Then in the evening, her mother helps us with her homework. She helps her in doing her homework. It does not mean that her mother does her homework. She helps. अगर कोई problem है, if Pihu has some problem, then she helps her. And then again she shows a picture where her mother is helping her in doing maths. And Pihu tells us that she enjoys doing maths.
Till here we have studied. Now we are going to start the next paragraph. Next paragraph, if you're having book, you can open it, page number 11. Open your book, page number 11, if you're having book. If you're not having book, if you're having PDF, that also you can open, or I'm going to write it on the board. The paragraph I will, as usual, I will write it on the board so that it will be easy for you to understand. Okay, so let me write the paragraph first. BEFORE, before. WAB, TO2, BED, bed. THE, the. THREE, OF, of. US, us. Watch, WATCH, watch. TV, or. My mother reads stories aloud for me. And my SISTER, WEB, love, STORIES, stories, and we enjoy reading them too. THEM, them, TOO. So this is the 7th paragraph, or you can say the next paragraph. Let me read this for you. पहले मैं आपके लिए इसको पढ़ दूँ, ठीक है? Before, BEFORE is before. BEFORE, before. WEV, GO, TO2, BED, bed. THE, the. THREE, OF, of. US, us. WATCH, watch. TV, OR, or. MY, my. MOTHER, mother. READS, reads. STORIES, stories. ALOUD, aloud. FOR, for. ME, me. AND, and. MY, my. SISTER, sister. WEV, LOVE, love. STORIES, stories. AND, and. WEV, ENJOY, enjoy. READING, reading. THEM, them. TOO. Let me read it in the form of sentence. अभी मैंने word by word इसको read किया है, isn't it? Word by word I read this. Now I will read it in the form of sentence. Before we go to bed, the three of us watch TV, or my mother reads stories aloud for me and my sister. We love stories, and we enjoy reading them too. Now let me explain. बिफोर वी गो टू बेड, मतलब बिफोर वी गो टू बेड का मतलब होता है बिस्तर पे जाने से पहले. बिस्तर पे जाने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे बैठेंगे ही नहीं, बेड पर बैठेंगे ही नहीं. इट डज नॉट, इट मीन्स दैट बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग टू बेड मतलब सोने से पहले. दिस हैज़ द मीनिंग दैट बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग टू बेड मतलब बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले. बिफोर गोइंग टू बेड इसका मतलब है कि बेड पे
बैठ सकते हैं, वी कैन सिट ऑन बेड एंड वी कैन enjoy whatever we want to do before going to bed। का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि हम बेड पे बैठे ही ना, इसका मतलब होता है सोने से पहले, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू बेड ये लोग क्या करते हैं, बिफोर वी गो टू बेड द थ्री ऑफ अस वॉच टीवी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बिफोर वी गो टू बेड, जब सोने जाने से पहले, जब तक हम सोते नहीं हैं, सोने से पहले हम तीनों, थ्री ऑफ अस मतलब तीन कौन, मदर, पीहू एंड हर यंगर सिस्टर, थ्री ऑफ देम, दे वॉच टीवी। वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना, सी होता है देखना, सी भी होता है, सी इज टू, इट इज रेडी टू साइट, कोई भी चीज़ हमें दिख सकती है, इजंट इट। बट व्हेन वी वॉच वी सी केयरफुली। वॉचिंग का मतलब होता है ध्यान से देखना, टू सी समथिंग केयरफुली विद इंटरेस्ट, ठीक है, टू सी समथिंग विद इंटरेस्ट और टू सी समथिंग केयरफुली, दैट इज कॉल्ड वॉचिंग, ओके। सी इज ओनली देखना, और हम कुछ भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास साइट है, आंखों में रोशनी है, इफ़ यू हैव साइट वी कैन सी एनीथिंग। बट वॉच जब हम करते हैं इसका मतलब हमारे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो दे वॉच टीवी, ठीक है, हम टीवी ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन पे कुछ भी देख रहे हैं, वॉच का मतलब उसमें क्या चल रहा है वो सब हम देखते हैं, है ना, समझते हैं उसको। तो दे वॉच टीवी। अभी वॉच के दो मीनिंग होते हैं, वन इज़ द रिस्ट वॉच, जो हम अपने हाथ पे पहनते हैं उसको भी हम वॉच बोलते हैं ना, रिस्ट वॉच। तो एक वॉच होता है जिसको हम हाथ में पहनते हैं, वो किसी चीज़ का नाम है, वो नाउन हो गया, और यहाँ पे ये एक्शन है, हम देख रहे हैं किसी चीज़ को देखना, कुछ काम करना। तो वॉच हैज़ टू मीनिंग, वन एज नाउन, इट इज़ अ थिंग जो हम यहाँ पे रिस्ट पे पहनते हैं, वॉच एज वर्ब व्हेन वी डू समथिंग, ठीक है। तो दे वॉच टीवी, टीवी मतलब टेलीविज़न, टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म होता है टीवी। तो सोने से पहले ये तीनों लोग मिलकर या तो टीवी देखते हैं या क्या करते हैं, और माई मदर रीड्स स्टोरीज अलाउड फॉर मी एंड माई सिस्टर। या तो हम टीवी देखते हैं या फिर मेरी जो मम्मी है, पीहू की जो मम्मी है, पीहू खुद बोले ना कि मेरी मम्मी हमारे लिए स्टोरीज़ पढ़ती है। तो रीड स्टोरीज अलाउड, अलाउड का मतलब है बोल बोल कर सुनाना, कहीं बुक से स्टोरीज जब पढ़ती हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोल के, ताकि दोनों बच्चियां सुन सकें। अदरवाइज़ अगर हम खुद स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो बड़े लोग होते हैं जब वो स्टोरी पढ़ते हैं तो बिना बोले पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, ठीक है। जितने भी ग्रोन अप्स हैं, द एडल्ट्स, व्हेन दे रीड समथिंग, व्हेन दे रीड स्टोरी और इफ दे रीड सम मैगजीन और एनीथिंग, दे डू साइलेंट रीडिंग। वो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं। आपने कभी देखा है न्यूज़पेपर आपके पापा या मम्मी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ रहे हैं? नहीं ना। या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से बोल के नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम खुद के लिए पढ़ते हैं तो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, मतलब बड़े लोग की बात हो रही है। when they read for themselves they do silent reading, but when they read for children, बच्चों के लिए पढ़ते हैं तो ज़ोर से बोलते हैं, बोल बोल कर पढ़ते हैं ताकि बच्चे उसे सुन सकें। तो उनकी मम्मी क्या करती है, मदर रीड्स स्टोरीज अलाउड, ज़ोर से बोलकर, ताकि दोनों बच्चे सुन सकें, मन में नहीं पढ़ती हैं, ठीक है। अलाउड का मतलब होता है जो सुनाई दे, ठीक है, सुनाई दे, बोलना, ऐसे बोलना कि सुनाई दे। तो मम्मी जो है वो बोल कर स्टोरीज पढ़ती है, किसके लिए, फॉर मी, मी मतलब मेरे लिए मतलब पीहू के लिए, एंड माई सिस्टर। तो मम्मी जो है वो स्टोरीज पढ़ के सुनाती है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मम्मी स्टोरीज पढ़ के हमें सुनाती है, हमें मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को स्टोरीज पढ़ के सुनाती है, ठीक। नेक्स्ट शी सेज वी लव स्टोरीज, मतलब हमें स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है। स्टोरीज़ अच्छी लगती है मतलब कोई अगर सुनाता है स्टोरी तो हमें बड़ा मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है ना। अगर मैं बोलूँगी चलो आज हम एक स्टोरी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ बड़ी, तो आपको लगेगा अरे मैम क्या स्टोरी सुनाने वाली है, सबको इंटरेस्ट आ जाता है, ये होता है सबके साथ, ऐसा होता है, तो बच्चों के साथ स्पेशली। तो वी लव स्टोरीज़, वो बताती है कि मैं और मेरी बहन, वी बोथ लव स्टोरीज़, हमें कहानी सुनना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है, एंड वी इंजॉय रीडिंग देम टू, और हमें सिर्फ सुनना ही नहीं अच्छा लगता, हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, स्टोरीज़ पढ़ना भी अच्छा लगता है,
पढ़ना भी, अगेन ये वी हैव दिस टू, मतलब स्टोरीज भी अच्छी लगती है और उन्हें पढ़ना भी अच्छा लगता है, कहानियाँ अच्छी लगती हैं और कहानियों को पढ़ना अच्छा लगता है। गॉट इट? तो पूरे पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि सोने से पहले, बिफोर दे गो टू बेड, ईदर दे वॉच टीवी और देयर मदर रीड्स स्टोरीज फॉर देम अलाउड। ओके, या तो उनकी वो लोग टीवी देखते हैं सोने से पहले या फिर मम्मी स्टोरीज बोल बोल के सुनाती हैं। Pihu and her sister, they both love stories and they also enjoy reading stories. Okay, now if I ask what they do before going to bed या before sleeping, what they do, तो आप क्या बोलोगे? Before going to bed they watch TV, they either watch TV or their mother reads stories for them. Okay, either or बोल सकते हैं, either they watch TV or their mother reads stories aloud for them, उनके लिए जोर से कहानी सुनाती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना? अब मैं इसी के नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ लिख देती हूँ। लेट मी राइट द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज over the weekend, we spend time together, DOING, doing, THINGS, things, THAT, that, WEVENJOY, SOME, some, TIMES, sometimes, we, WEV, GO, TO2, THE, the, LIBRARY, library, YOU, CANSEEC, me, HERE, here, choosing, CHOOSING, choosing a, BOOK, book, FOR, for, MY, my, SELF. This is the next paragraph. This यहाँ पे हम एक क्रॉस लाइन बना देते हैं। चलिए, now let me read word by word for you. Word by word मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। OVER, over, THE, the, WEEK, week, END, end, weekend, क्या बोलेंगे इसको? weekend, WEV, SPEND, spend, TIME, time, TOGETHER, together, DOING, doing, THINGS, things, THAT, that, WEVENJOY, enjoy, SOME, some, TIMES, times, WEV, go, TO2, THE, the, LIBRARY, library, YOU, CAN, SEEC, me, HERE, here, CHOOSING, choosing a, BOOK, book, FOR, for, MY, my, SELF,
माई सेल्फ। चलिए अब सेंटेंस वाइज मैं इसको पढ़ती हूँ। ऑन द वीकेंड वी स्पेंड टाइम टुगेदर डूइंग थिंग्स दैट वी enjoy. Sometimes we go to the library. You can see me here choosing a book for myself. Now in this paragraph, what we come to know that over the weekend. अभी वीकेंड किसको बोलते हैं? वीकेंड का मतलब होता है वीक के लास्ट में। वीक आपको पता है, 1 वीक किसको बोलते हैं? फ्रॉम मंडे टू संडे इज 1 वीक। ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक 1 वीक होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरे 7 डेज मिलाकर एक वीक बनता है। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज से 1 वीक बनता है। तो वीक के लास्ट में, वीक एंड, एंड मतलब वीक के एंड में, वीक के एंड में ओवर द वीकेंड वी स्पेंड टाइम टुगेदर। अभी वीकेंड कहते हैं किसको? वीक का एंड हो गया, तो वीक का एंड क्या होता है? सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को वीकेंड कहा जाता है। ठीक है, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को वीकेंड बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा लोग नॉर्मली इस दिन छुट्टियां होती हैं। अब तो अब हमारे कंट्री में भी होने लगा है सैटरडे एंड संडे, और जिसको वीकेंड्स बोलते हैं। तो वीकेंड्स पे बहुत सारे ऑफिस में छुट्टी होती है, बहुत सारे ऑफिस में वर्क नहीं होता है। तो ओवर द वीकेंड, जब वीकेंड आता है, वीकेंड में क्या करते हैं ये लोग? वी स्पेंड टाइम टुगेदर। वी मतलब, वी का मतलब होता है हम कौन? पीहू, पीहू की मम्मी और पीहू की सिस्टर, ये 3 लोग। हम क्या करते हैं? वी स्पेंड टाइम टुगेदर। हम अपना समय एक साथ, एक दूसरे के साथ बिताते हैं। मतलब हम अब क्योंकि सारे वीक काम किया, मंडे से लेके फ्राइडे तक मम्मी काम पे जाती है, पीहू स्कूल जाती है, पीहू की सिस्टर प्ले ग्रुप जाती है, प्ले स्कूल जाती है ना। फॉर द rest of the week from Monday to Friday, mother goes to her work, Pihu goes to school, and her sister goes to play school. All the 3 they go to their places. So at the weekend, when we on Saturdays and Sundays, they all are at home. Mother does not go to her workplace, Pihu does not go to school, and her sister does not go to play school. So all the 3 of them, they spend time together. ये एक साथ समय बिताते हैं, फैमिली एक साथ रहती है। तो क्या करते हैं? डूइंग थिंग्स दैट वी एंजॉय। तो हम वो लोग मिलकर क्या करते हैं? वो चीज़ें करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगता है, जो करने में उन्हें मज़ा आता है। एंजॉय किसको कहते हैं? व्हेन वी लाइक समथिंग, व्हेन वी लाइक डूइंग समथिंग, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वी एंजॉय डूइंग दैट। जिसको करने में यू हैव अ गुड फीलिंग, द थिंग्स दैट यू डू एंड यू लाइक एंड यू लव डूइंग दैट इज़ कॉल्ड एंजॉइंग, मज़ा आना। तो वो काम करते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आता है। मतलब घर में रहते हैं तो वो सब चीज़ें करते हैं। मान लो कुछ खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता होगा, वट एवर दे लाइक, दे डू द थिंग्स दे एंजॉय डूइंग। समटाइम्स, अब इसमें देखिए आगे लिखा है समटाइम्स वी गो टू द लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी क्या होता है? सिंस यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, अभी जब से आप स्कूल में आपका प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हुआ है, आप स्कूल ही नहीं आ पाए हो, एंड दैट इज़ रियली वेरी सैड। आपने LKG UKG तो स्कूल में पढ़ा होगा में, फिर उसके बाद आप क्लास 1 में जब आए तो स्कूल बंद थे, आपने ऑनलाइन क्लासेस की, यू डिड नॉट गेट चांस टू कम टू स्कूल। फिर जब आप 2 में आए, अगेन लॉकडाउन, अगेन स्कूल आर क्लोज्ड, फिर आप स्कूल नहीं आ पाए। तो आपने पिछले साल भी स्कूल नहीं देखा, इस साल भी आपने स्कूल नहीं देखा। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली शो यू लाइब्रेरी, क्योंकि अगर आप स्कूल आते तो आपको मैं लाइब्रेरी भी दिखा देती।
लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक ऐसा रूम होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ ढेर सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक। अ प्लेस, अ रूम विच हैज़ लॉट्स ऑफ बुक्स। बहुत सारी बुक्स होती हैं और सब तरह की बुक्स होती है। उसमें पढ़ाई की भी बुक होती है, स्टोरी बुक्स भी होती है, कार्टून वाली बुक्स भी होती है, कॉमिक्स होते हैं, पिक्चर बुक्स होती है, मतलब हर तरह की बुक्स उसमें होती हैं। जिसको जो मर्ज़ी वो पढ़ सकता है ना मज़े की जगह। स्टोरी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, आपके जो छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स हैं, पिक्चर बुक्स हैं, और बड़े बच्चों के लिए जो उनकी स्टडी से रिलेटेड बुक्स होती हैं। बहुत तरह की बुक्स होती है लाइब्रेरी में। इवन योर स्कूल ऑल्सो हैज़ अ बिग लाइब्रेरी। आपके स्कूल के पास भी बहुत ही अच्छी और बड़ी लाइब्रेरी है, बट ड्यू टू कोविड यू आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल एंड यू आर नॉट एबल टू विजिट लाइब्रेरी। नहीं तो आप लाइब्रेरी देखते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने ऑनलाइन क्लास में, वाइल आई वॉज टेकिंग ऑनलाइन क्लास, आई शोड यू द लाइब्रेरी। बाहर से मैंने आपको लाइब्रेरी दिखाई थी। लाइब्रेरी तो लॉक्ड थी, बट आई हैव शोन यू। आपको याद होगा वहाँ पे एक पीकॉक था, रियल का पीकॉक था ना। आपको मैंने उसको दिखाया भी था, पिक्चर दिखाया था आपको कि एक पीकॉक वहाँ पे आ गया था आपके, क्योंकि स्कूल में तो अभी बच्चे हैं नहीं, तो एक पीकॉक आया था एंड इट वॉज द पीकॉक वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास ही खड़ा था एंड आई शोड यू दैट, डू यू रिमेंबर? एंड आई क्लिक द पिक्चर ऑल्सो। तो वो थी हमारे स्कूल की लाइब्रेरी। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, तो जब भी आप स्कूल आओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं लाइब्रेरी। तो मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल में ही हो। लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर भी लाइब्रेरीज़ होती हैं। बहुत सारे शहरों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं और वहाँ पे पब्लिक अपना मेंबरशिप लेके जा सकते हैं। तो कभी कभी समटाइम्स दे गो टू लाइब्रेरी, मतलब मदर और पीहू ये लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं। पीहू की सिस्टर भी जाती है, मे भी अभी सिस्टर बहुत छोटी है, उसके लिए लाइब्रेरी में कुछ ऐसा हो सकता है बुक ना हो, लेकिन पीहू और मम्मी के लिए तो है वहाँ पे बुक। तो कभी कभी वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं ताकि वहाँ से वो अच्छी अच्छी बुक्स लेकर पढ़ सकें। और वहाँ पे मेंबर बनना होता है और आप फिर बाहर की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें आप मेंबर होते हैं और फिर आपको पैसे नहीं देने होते हैं बुक पढ़ने के। आप वहाँ पे फ्री में बुक पढ़ सकते हो। और आपके स्कूल में भी क्या है, आप फ्री में बुक पढ़ोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप बुक पढ़ोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। तो और कभी कभी क्या होता है, लाइब्रेरी से आप बुक्स इशू भी करा सकते हो। इशू कराने का मतलब होता है आप उसे घर ला सकते हो। आप पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरी करके आप बुक को घर ला सकते हो और पढ़ने के बाद बुक वापस करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं बुक इशू कराना। मतलब कोई बुक आपको बहुत अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि वहाँ बैठ के पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे, तो आप बुक इशू करा सकते हो और फिर घर में आके उस बुक को पढ़ सकते हैं। जब बुक पढ़ लिया तो उसको फिर वापस कर देना होता है। ऐसा लाइब्रेरी में होता है। तो वो लाइब्रेरी जाते हैं, फिर वो एक पिक्चर हमें दिखाती है पीहू। एक साइड में पिक्चर बनी, आप अपने बुक में देखेंगे, जहाँ पे पीहू जो है अपने लिए बुक्स चूज़ कर रही है। क्योंकि वहाँ बहुत सी बुक्स होती हैं ना, तो आपको जो भी बुक चाहिए थोड़ा सा चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी बुक्स पसंद आ रही हों, तो कौन सी वाली बुक लें, या हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये वाली मेरे को अच्छी लगेगी कि ये अच्छी लगेगी, तो चूज़ करते हैं वहाँ पर। तो पीहू इज़ ऑल्सो चूजिंग अ बुक फॉर हर सेल्फ। और वो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि वो ऐसे शेल्फ पर बुक चूज़ कर रही है, ठीक है। तो दिस इज यू कैन सी मी मतलब उसने एक पिक्चर दिखाया है, एक पिक्चर बना हुआ है बुक में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पीहू जो है वो अपने लिए, माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, ठीक है, अपने खुद के लिए वो बुक चूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये वो लोग लाइब्रेरी का पार्ट हो गया। आपको लाइब्रेरी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया ना। जब अब आपको सोच रहे हो ना कि कब स्कूल खुले और कब लाइब्रेरी देखें और अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ें, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। और जब भी स्कूल खुलेंगे आप लाइब्रेरी ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि वीकेंड्स पे द फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर, they do those things that they enjoy doing, and sometimes they go to library and there they
read stories, or they bring books to read at home. And then Pihu has shared a picture where she is choosing a book for herself. तो ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। और अब एक और पैराग्राफ बचा है, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बस एक सिंगल पैराग्राफ बचा हुआ है और उसके बाद हम उसको कंप्लीट करके वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको समझाया है, प्लीज़ रीड दीज पैराग्राफ्स, पढ़िए, इसको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ अगर इसमें ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, आई विल मीट इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।